Hello student of 10th class, I hope all of you okay. And in civics I am going to start your second chapter federalism, that is. And in first chapter power sharing, we have studied that. Try to recall that when we studied about the form of power sharing, we studied there power can be shared in 4 ways. And in first form of power sharing, we have studied that power can be shared among different organ of government, such as in executive and judiciary and legislature. And also power can be shared at a different level of government. In second form of power sharing, in first chapter we have studied that power also can be shared at different level of government. एक different of level government here, and second उसके नीचे, and third उसके नीचे, maybe further it can be. But in modern democracies में हम इन 4 फॉर्म देखते हैं. तो अभी हमारे कंट्री में क्या है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम कैसे है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. फेडरलिज्म इट मीन्स संघवाद, संघवाद, हिंदी में इसको कहते हैं संघवाद. ओके, तो इन दिस चैप्टर we will study only second form of power sharing. Second form of power sharing, that is called vertical power division. तो आप को पहले मैं बता देता हूँ, तब उसके बाद फिर बेल्जियम की केस स्टडी को थोड़ा सा रिकॉल करके हम आगे बढ़ते हैं. देखो, डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं. डेमोक्रेसी इट मीन्स लोकतंत्र. व्हाट वी डू इन डेमोक्रेसी? इन डेमोक्रेसी वी इलेक्ट, यानी पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. Then people can be elected in 2 system. People, यानी citizen of any territory can elect their government in 2 system. In 2 system, one system, suppose that this is, they can elect only single government. It means center. And this government will rule all over entire country. So one system, पहला सिस्टम क्या हो सकता है कि people can elect only one level of government, and this only single level of government will govern entire country. This is called unitary system of government. Unitary system of गवर्नमेंट. अगर ऐसे गवर्नमेंट, ऐसे लोग क्या कि एक ही लेवल की गवर्नमेंट, जैसे हम सपोज दैट एग्जांपल, जैसे हम मोदी जी को भी चुने हैं, हम योगी जी को भी चुने हैं. सपोज कि हम सिर्फ मोदी जी को चुनते हैं कि भैया आप पूरे भारत पे शासन करिए अकेले, हमको योगी जी की आवश्यकता नहीं, उत्तर प्रदेश में कोनो जरूरी नहीं है, पूरे भारत में क्या करें, इसको आप शासन करिए, तो हमारा देश क्या हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अभी सेकंड तरीके से क्या कर सकते हैं, सपोज दैट इस कंट्री, मान लीजिए कंट्री ए है और कंट्री बी है, पी बन गया, बी है. पीपल आल्सो कैन इलेक्ट इन सेकंड डिफरेंट सिस्टम. हाउ? दे कैन इलेक्ट वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या कैन बी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स सेंटर. And they also can choose or elect substitute units or for provinces, government for provinces, कि सेम गवर्नमेंट ऐसे चुन ले, ऐसे छोटे छोटे गवर्नमेंट्स और इस कंट्री में रहे. ये जो बड़ा वाले हैं बप्पा जी, ये पूरी दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट विल रूल इंटायर कंट्री. ये सेंटर विल रूल इंटायर कंट्री. And these constituent units of country will govern only in these areas. So here what we are getting,
that we are getting in unitary system there is only one level of government. We are getting here in unitary system of government only there is one level of government. There is no any states. Maybe it can be on a state, it can be many states, but these states have no right to as independent power. They are just like a subordinate of central government. In second system of government, this is not form of government, this is system of government in democracy. This is system of government. तो अभी यहाँ what are we looking कि same people's elected central government and same people elected provincial government. Central government is working for entire country and these constituent unit of provincial government also working for their areas. So this is unitary system of government and this is federal system of government. This is federal system of गवर्नमेंट, यानी दिस इज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं. आप बेल्जियम को याद करिए. बेल्जियम स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप. पहले वो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था. व्हेन बेल्जियम गवर्नमेंट फेस्ड एथनिक प्रॉब्लम एंड सोशल प्रॉब्लम, दे डिवाइडेड एंड दे शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी सिस्टम टू फेडरल सिस्टम. क्या कहते हैं आपको याद आ रहा होगा कि आप वो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई. वह स्टेट गवर्नमेंट्स ज़्यादा उन पर डिपेंड नहीं थे, अपने इंडिपेंडेंट ले सकते. कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई और क्या हुआ यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम में वो बेल्जियम हमारा शिफ्ट हुआ था. कहानी आपको याद आ रही होगी. केस स्टडी ऑफ बेल्जियम को आप घर पढ़ लीजिएगा. अभी तो हमने दो चीज़ों को देखा कि गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी इन टू टाइप. वन यूनिटरी सिस्टम, वन यूनिटरी सिस्टम और सेकंड फेडरल सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम and second federal system. In unitary system, what is? In unitary system only there is one level of government, work for entire country. Maybe if any states or provinces are existed, but they are just like subordinate of central government. Unitary union, single. And that if in federal system of government there are two or more level of government. There are two more level of government. And each level of government govern same citizen, but their jurisdiction is different. One for entire country, यानी central government for entire country and state for state. Okay, तो फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंसेस जो हैं मुझे लगता है आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के. ओके, तो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे. अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. ये हमारा पॉइंट है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या होती हैं? देखो, पहली विशेषता फेडरलिज्म क्या है? देयर इज टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म. If only single level of government, there is not federalism. If there is two or more level of government, that is federalism. Okay, यानी two or more level, two or more level, two or more level, and different tier of government, different level of government. govern same citizen, govern same citizen. Same citizen, but jurisdiction is different.
but jurisdiction is different. Each level of government govern same citizen. जैसे our country is federal system of government. अभी क्या मोदी जी भी हम पे शासन करते हैं, हमको भी पैसा देते हैं, हमको भी मदद करते हैं, योगी जी भी सेम करते हैं. तो देयर आर 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट. वन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेट. मोदी जी भी कर रहे हैं और योगी जी भी कर रहे हैं. ठीक है. एंड तीसरा क्लियरली डिफाइंड हम लिख दे रहे हैं. डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन. शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप उसको बता दे रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन jurisdiction of each level of government is clearly defined in constitution. कि भाई मोदी जी को क्या करना है, योगी जी को क्या करना है. नहीं तो दोनों लोग झगड़ा कर लेंगे, अरे भैया आप ही कर रहे हैं, हम इसको हम करते हैं तो ठीक रहता, मजा आ जाता, आप ना करिए. तो इन सब चीज़ों को एक कंट्रोवर्सी, विवाद ना हो, इसके लिए इनकी जुरिस्डिक्शन जो है, जुरिस्डिक्शन इट मीन्स अधिकार क्षेत्र. आपका अधिकार, जैसे हमारा अधिकार क्या है कि हम आपको पढ़ाएं, आपका सिस्टम करें. लेकिन मेरा ये अधिकार नहीं है कि हम छुट्टी डिक्लेयर करें या टाइम टेबल मैनेज करें या फिर स्कूल का पैटर्न कैसे चलेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव काम है नहीं. मेरा जुरिस्डिक्शन इस टीचिंग. प्रिंसिपल मैम का आपके अपना जुरिस्डिक्शन है, वो भी कुछ डिसीजन नहीं ले सकती है और कुछ डिसीजन उनके अंडर में है. तो डायरेक्टर मैनेजमेंट का अपना जुरिस्डिक्शन है. तो हर एक लेवल का अपना अपना जुरिस्डिक्शन है और ये क्लियरली डिफाइंड है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है कि प्रिंसिपल ऑफ स्कूल क्या करेगा, टीचर्स क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेंगे. घर में भी सेम डिवीजन हुआ रहता है. ऐसे ही क्लियरली डिफाइंड है हमारे यहाँ कि ईच अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट जो है वो क्या करें, कैसे, मतलब उनका जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा, क्या क्या काम करेंगे. ठीक है. और फंडामेंटल प्रोविजन जो है, फंडामेंटल जो प्रोविजन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल प्रोविजन फंडामेंटल प्रोविजन जो है ये कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरी. मतलब अगर सोचें कि कोई फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, सिस्टम का, अगर एक लेवल की गवर्नमेंट अगर उसको चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं कर सकती है. वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्या करना पड़ेगा, मदद लेना पड़ेगा. ठीक है. और देख लो आप कि कोर्ट का बड़ा रोल होता है. 1 2 3 4 हो गया. 5 आप देखिए, रोल ऑफ कोर्ट में लिख दे रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत बड़ा लिखा है रोल ऑफ कोर्ट. कोर्ट ऑफ कंट्री प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन. अभी कोई प्रॉब्लम होता है इनके रिलेशन में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई रिलेशन में, कि इनके जुरिस्डिक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट क्या होती है, वो सुप्रीम पावर के साथ इसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रहता है. हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट हमारे जो सबसे हायर लेवल की कोर्ट है. ठीक है. उसमें कोई फेडरल सिस्टम नहीं है. सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, अगर देखेंगे सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, इस लेवल की, सभी लेवल की गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है. मतलब राजस्व, पैसा जनता से कैसे कलेक्ट करना है, कैसे गवर्नमेंट को रन करना है, सबका. इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके डुअल ऑब्जेक्टिव है. एक तो ये है कि सेफ गार्ड फॉर सिटीजन्स होता है, और एक यूनिटी को भी ये क्या करता है, बांधे रहता है. ठीक है. यूनिटी ऑफ कंट्री को भी क्या करता है, प्रोमोट करता है. समझ रहे हैं. तो एक बार फिर से हम हमने दो चीज़ों को पढ़ा है.
डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डेफिनेशन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट, एक ही लेवल की गवर्नमेंट पूरा नौटंकी करेगी। फेडरल में औकात पे अपने रहेंगे, हम इतने औकात पे हैं, कोई इतने औकात पे, कोई इतने औकात पे, आप अपना काम करिए, अपना काम करें, अपने औकात में रहें, अपने औकात में रहें, दैट्स मीन, और क्लियरली डिफाइंड है। फीचर्स आप देखेंगे तो देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट and each level of government govern same citizen but their jurisdiction is different and their jurisdiction is in constitution clearly defined in the constitution, ठीक है। fundamental of provisions of constitution cannot be changed unilaterally by any level of government, this should be consent with state government and central government should be, and if any controversy created in federal system of government, court play important role in just Supreme Court and High Court in our country to solve this problem, relation between central and state government, and source of revenue is different. State government can collect their sources of revenue and central government too। और इस तरीके से एक सेफ गार्ड और यूनिटी का भी प्रमोट करते हैं। हम आगे देखेंगे वे रूट ऑफ फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जो भी पॉइंट रहेगा। थैंक यू।